So today we have these two problems, and ignore these two. We have these two problems, and I would say these two are the best, not best, the best problem of backtracking and recursion for clearing your backtracking and tree concept, like the backtracking tree which we make. So these two are the like one of the basics and most important. I did these two questions obviously, and my concept was so clear, like I cannot even tell you. So I'll try to explain the intuition for this problem first, because this contain another sub problem, and then once you get through this you can easily think of the solution about this thing. So on lead code these two are in medium category, and this partition of k subset is in hard on GFG, and again in medium the simple one. So we'll start with this thing, partition equal subset sum. So what we are given, we are given an array with only positive integers, and we have to partition it into two subsets such that the sum of elements in both subsets are equal. So let's show you how things are done. Mm, the question says is what the question says basically is, and I'll try to make this in Hindi because in Hindi it will be easier to explain because kind of complex it is. So the question says is you have no, that's not what question says. Question says you have an array of number. For example, what we were given. Just a second. Uh, yes, what we were given. 1 5 5 11 5. Okay, we are given 1 5 11 5. This is our array, and what this is, divide this array into two equal array. Like, is it possible? They are just asking us, is it possible? Find if the array can be partitioned. Is it possible to what the heck? Yep. Is it possible to partition this array in two sub arrays so that the sum can be equal? Like basically 10 को दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं क्या, जिनका सम इक्वल हो तो कर सकते हैं 5 + 5 जैसे एक डिजिट को करते हैं, तो ऐसे ही अभी एक array को करना है। तो इंट्यूशन बताते हैं, क्योंकि इसका जो लाइक दिस बिग चंक ऑफ प्रॉब्लम, एंड इसका पहले एक हाफ चंक वी नीड टू सॉल्व, एंड देन यूजिंग दिस होल चंक will solve a bigger problem like the k1. I'll just draw a Venn diagram. This is the k subset problem, this is the equal subset problem which we are discussing now, and this is a chunk of problem which is find some subset. I'll just explain. First I'm explaining this, then we'll go deeper, and then we'll come out to this problem. अच्छा, हमारे पास ये आ रहे हैं 1 5 11 5। अब हमें इसको दो पार्ट्स में से डिवाइड करना कि क्या ये इक्वल आ सकती है। सो वी आर ह्यूमन, वी कैन जनरली कैलकुलेट, लाइक वी कैन सी, हाँ एक एरे ऐसे निकल जाएगी एंड एक एरे निकल जाएगी 11 की। सो सम ऑफ दिस इज 11 एंड सम ऑफ दिस इज ऑल्सो 11। सो ये एक हमारे पास एरे आ गई जिसको हमने कंप्यूट कर लिया 1 5 5 एंड 11। सो इफ आस्क्ड, जैसे यहाँ पे 1 5 5 एंड 11, तो यार एक ही एरे से पार्टीशन करी जा सकती है। अब ये एरे 1 2 3 5, अब इसका कोई भी सम ऐसे नहीं पार्टीशन कर सकते कि ये दो अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाए। द एरे कैन नॉट बी पार्टीशन इन इक्वल सम सबसेट। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टू सबसेट में डिवाइड करना है इसको। सो लेट्स सी। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है काफ़ी यूनिक काइंड ऑफ है। लाइक मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे 5। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम अब एक ट्री की स्टार्ट करते हैं। लाइक विल स्टार्ट अ ट्री एंड यूल गेट दिस लाइक बहुत ज़्यादा इजीली, क्योंकि मेरे को पहले बहुत डिफिकल्टी लगती थी, बट दिस थिंग इज इजी। विल स्टार्ट अ ट्री विद 1। ओके, हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, उसके साथ स्टार्ट करने। हमारे पास दो ऑप्शन है इस ट्री को लेके, इधर वी कैन इंक्लूड दिस और वी कैन एक्सक्लूड दिस। लाइक हमारे सेट में यहाँ पे जो हमारे सेट बन रहा था, ये तो हमने वर्बली देख के, लाइक हमने विजुअली देख के बना दिया है, तो ठीक है कि 1 1 5 5 बना। बट अगर हम कोई लूप लगाते हैं तो पहले वो 1 को चेक करेगा, फिर वो 1 से सबको ऐड कराएगा। वो ब्रूट फोर्स यही होगा कि वो सारे एलिमेंट ऐड होंगे, फिर चेक होगा। लाइक बहुत ज़्यादा कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी। सो जो ऑप्टिमल मेथड है वो है कि आप जो सेट बना रहे हो, लाइक हाँ इस वन से पहले भी मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ कि जो उसका सबसे बेस्ट इंट्यूशन है, लाइक जिसको देख के यू फील लाइक ओ
दिस वॉज द थिंग, लाइक कितना कितना ज़्यादा सही था। अच्छा, एक चीज़ ये हमारे पास है, इसका हम सम कर लेते हैं, तो इसका सम आएगा 22 हमारे पास, बिकॉज 11 और ये जो 5 5 10 एंड 1, इसका सम आएगा 22। अब एक चीज़, लाइक वी नीड टू फोकस ऑन समथिंग, दैट 22 को इन्होंने बोला है कि दो हाफ में डिवाइड करो। लाइक इन्होंने नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ कि 22 को दो हाफ में डिवाइड करो कि उन दोनों का सम इक्वल आए। तो क्या करोगे, तो 22 को दो हाफ में कैसे डिवाइड करोगे, सम इक्वल आए, 11 11 करके। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में 11 आएगा, दोनों में 11 आएगा, जब भी तो सम इक्वल होगा दोनों का, 22 22। और कोई तो वे है नहीं, कोई भी नंबर लेते हैं, 46 नंबर लो। अब ये कह रहे हैं कि क्या पॉसिबल है इसको दो वे में डिवाइड करना कि इन दोनों का सम इक्वल आए, तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, 23 करके। और क्या वे होगा, इसमें भी अगर ध्यान से देखें हम, इसमें भी हमने दो सेट में डिवाइड करा था, 11 यहाँ पे आया था, 11 यहाँ पे आया था। तो किसी भी चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करने की बात होगी, 32 को दो पार्ट में, और यहाँ फ्लोट नंबर नहीं है, इवन ही नंबर है, को दो पार्ट में डिवाइड करने की बात होगी, तो ऑब्वियसली ये हो गया 16 और 16, तो आना तो हमेशा हाफ में ही है। अब इस हाफ का वो देखते हैं, इस हाफ की इंपॉर्टेंस क्या है। इस वाले क्वेश्चन में 1 5 11 और 5 में हमें दो सेट ढूंढने हैं जिनके अंदर हम ऐसे वैल्यू रख पाए, जैसे यहाँ पे तो सिंपली 1 5 और 5 रख दिया, बट फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 6 होता, इसमें हमें रखना होता, तो हम फिर से रख सकते थे 1 2 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं कि इसमें सिंगल ही वैल्यू आएगी राइट वाले में, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी हो सकते हैं जिनके अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे 6 4 10 ऐसे वैल्यू आ जाए, और फिर यहाँ पे भी कोई कोई वैल्यू आ जाए, तो तभी तो दो सेट बनेंगे। एंड इन दोनों सेट के सबसेट बनाने, तो ऐसा नहीं है वी हैव टू इंक्लूड ऑल नंबर्स, सबसेट नहीं, आई गेस सारे इंक्लूड करने हैं। जस्ट अ सेकेंड, find the array can be partitioned in two subsets such that sum of element, हाँ हमें टू सबसेट बनाने हैं, इनका कोई नंबर हमें लीव नहीं करना, वी डोंट हैव टू लीव एनी नंबर। सो हाफ नंबर यहाँ पे जाएंगे एंड हाफ नंबर यहाँ पे जाएंगे। अब इस जो हाफ की आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस 28 थिंग, तो इस 28 का 14 हाफ होता है। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, हम दो सेट फाइंड करने की बजाय वी जस्ट फाइंड अ सिंगल सेट विद सम 14, तो जो लेफ्ट ओवर होगा वो तो अपने आप ही 14 सम होगा ना। लाइक 28 में से अगर हम 14 सब ट्रैक कर देंगे, तो जो बचेगा वो तो 14 होगा, उसको क्यों ही कैलकुलेट करना। इट्स द बेस्ट मेथड आई कैन थिंक। अगर यहाँ पे 1 5 11 और 5 में से हमने 11 साइड निकाल लिया है, सो जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग चंक ऑफ पीस, लाइक चंक ऑफ एरे होगा, उसका सम ऑब्वियसली 11 होना है। क्यों, क्योंकि इसका जो ओवरऑल सम है वो 22 है, 22 का हाफ 11 होता है। तो हमें सिर्फ ऐसी एरे फाइंड करनी है जो 11 जो कंप्यूट करके 11 बनाए, एंड रेस्ट ऑफ द तो हमारा लाइक काम हो ही गया, हाफ हमने कंप्यूट कर लिया, हाफ अपने आप कंप्यूट हो जाएगा। सो दिस वॉज द थिंग। तो अब इस वाले इसको क्या नाम है, 1 5 5 11 को लेके अपना ट्री बनाते हैं कि ट्री इसमें कैसे काम करेगा। फिर जैसे रिकर्जन का जो ट्री होता है, अच्छा हमारे पास 1 है, एंड 1 में हमारे पास दो ऑप्शन है कि 1 को इधर इंक्लूड करना है हमें या एक्सक्लूड करना है। लाइक या तो हम 1 को इंक्लूड करके बना सकते हैं या फिर एक्सक्लूड करके, मतलब कॉम्बिनेशन तुम वैसे नॉर्मली निकाल ही नहीं सकते ऐसे कि यहाँ से तो देख के हमने 5 5 1 कर लिया, बट वेन जैसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 4 6 10 48 ऐसे नंबर्स हो जाएंगे, तो इसमें कितने सारे कॉम्बिनेशन निकालेंगे ऐसे ऐसे करके, वो पॉसिबल नहीं है। सो उसके लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं वही है इंट्यूशन, मतलब पहले तो 1 को इंक्लूड करना एक्सक्लूड करना, हम पॉजिटिव वे लेके चलते हैं कि हम इंक्लूड करेंगे, हमने 1 को इंक्लूड कर लिया। अब हमारे पास जो सम था, द सम व्हाट वी नीड टू फाइंड इज 11, क्योंकि ओवरऑल सम जो था वो 28 था, पूरा 28 कैलकुलेट करने की बजाय हाफ कैलकुलेट कर लेते हैं 11। सो अब हमें 11 सम फाइंड करना है। अच्छा, हमें 11 में से हमें 1 मिल चुका, 11 में से हमें 1 मिल चुका, तो हम क्या करेंगे, सब ट्रैक करेंगे। अब हमें 10 सम फाइंड करना है, तो हमारा न्यू सम जो है वो है 10, और जो हमारी न्यू वैल्यू है 1 को हमने इंक्लूड कर लिया। अब जो इंक्लूड कर लिया मीन्स इस सेट में हमने 1 डाल लिया, अभी पता नहीं, और ये वाला सेट एम्प्टी है, इसमें हमने 1 डाल लिया। अब हम आगे चल रहे हैं, अब हमारे पास है 5, तो हमने यहाँ पे 5 को लिखा। अब हम अगेन 5 के पास दो ऑप्शन है कि 5 को इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें, मीन्स यहाँ से 5 को लें या फिर छोड़ के नेक्स्ट डिजिट पे बढ़ जाए। तो बी पॉजिटिव एंड लेट्स इंक्लूड 5 ऑल्सो, हमने 5 को भी इंक्लूड कर लिया, तो सम आ गया यहाँ पे 5, क्योंकि सम 5 होता है ना। अब यहाँ से 10 में से हमने 5 और इंक्लूड कर लिया, हमारे पास ये आ गया 6 हो चुका है।
11 माइनस 6, अब हमारे पास बचा 5। अब हमें एक डिजिट और चाहिए 5 के लिए और हमारा सम हो जाएगा 0। तो इंक्लूड कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिजिट है वो फिर से 5 है। अभी एक और एग्जांपल सा एक्सप्लेन करूंगा, उसमें ज़्यादा अच्छी बैक ट्रैकिंग। अब इसमें इंक्लूड है और इसमें एक्सक्लूड है। सो इंक्लूड करें एक्सक्लूड करें, ऑब्वियसली इंक्लूड करते हैं, तो लेट्स इंक्लूड, और सम हो गया अभी हमारा 0 क्योंकि हमने 5 को इंक्लूड कर लिया। तो जो हमारा ट्री बना उसको हम कैसे बैक ट्रैक करेंगे कि ये 5 भी इंक्लूडेड है, ये 5 भी इंक्लूडेड है और ये 1 भी इंक्लूडेड है। तो हमारे इस सबसेट के अंदर 1 भी आ गया, 5 भी आ गया और 5 भी आ गया। जैसे ही हमारा सम 0 हुआ, हमारी बेस कंडीशन हमेशा यही होगी कि इफ़ हमारा सम 0 हो जाता है, सम 0 हो जाता है इसका मतलब हमें सारे वो मिल चुके हैं ना, एलिमेंट मिल चुके हैं जो भी हमें चाहिए थे इस सम को। मतलब हमें 11 तक पहुंचना था, हम 0 पे खड़े थे, हमें 11 तक पहुंचना था। हमारे पास बहुत सारे वेज थे जाने के, हमारे पास बहुत सारे वेज थे। तो अगर आप 11 पे पहुंच गए तो उसका मतलब इट्स लाइक आपने जर्नी कंप्लीट कर ली है। अब आगे करके कुछ क्या फ़ायदा, हाफ आपको मिल चुका है। अब जो रिमेनिंग हाफ है 1, 5, 5 और 11 में से जो रिमेनिंग हाफ है, ऑब्वियस सी बात है वो 11 ही होगा क्योंकि 22 का हाफ जो कि 11 था वो हमने फाइंड कर लिया है। बचा गया 11 बचा। अब एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक दैट एग्जांपल। सो नेक्स्ट वो है बड़ा सिंपल, 1, 2, 3 और सम चाहिए 5। तो कोई भी देख के बता देगा कि हाँ इसमें से ऐसे 5 सम हो जाएगा, 5 सम हो जाएगा। अच्छा हाँ, उसका वो चंक वाला जो पोर्शन था, ये जो चंक वाला पोर्शन था, इसके अभी इस वाले चंक पे आते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, दो सेट निकाल रहे थे यहाँ पे आके कि अरे तू कहाँ जा रहा, स्टे करने का। सो अभी हम दो सेट निकाल रहे थे ना यहाँ पे कि एक लेफ्ट वाला सेट एक राइट वाला सेट। तो अभी ये जो हमारी प्रॉब्लम है, एक अनदर प्रॉब्लम लाइक कहाँ चले गए, हाँ, ये एक अनदर प्रॉब्लम जो है, स्मॉलर प्रॉब्लम, वो ये है कि हमें एक सबसेट गिवन है। अगर इसको देखो बड़ी वाली प्रॉब्लम को, जो हमारी 1, 5, 11 और 5 वाली प्रॉब्लम थी, उसमें से हमें दो वो फाइंड करने थे, सबसेट फाइंड करने थे। तो अगर हम इस बड़ी प्रॉब्लम को देखें तो ये जो छोटी प्रॉब्लम है ना, वो है कि हमें एक सेट दिया हुआ है 1, 5, 11 और 5 का, और उस सेट में से हमें सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है 11, 22 फाइंड नहीं करना क्योंकि 22 ओवरऑल है। हमें सिर्फ इस वाले ब्लॉक के लिए 11 सम फाइंड करना है कि 11 सम कहाँ से होगा। सो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट चंक ऑफ प्रॉब्लम है वो ये है, सम फ्रॉम अ सबसेट विच मीन्स 1, 5, 11 और 5 में से हमें सम निकालना है 11। ये 11 सम मतलब फाइंड करना है कि कौन से डिजिट्स लाइक 5, 5 और 1 मिला के 11 बनता है। तो ये हमारा छोटा पीस ऑफ कोड है। बड़े वाले में हमें क्या करना था, हमारा 11 मिल जाता, हमारा ये वाला 11 भी मिल जाता। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो अब हमारी जो बिल्कुल सबसे छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो यही है कि एक सबसेट हमें गिवन है जो कि है 1, 2, 3, और हमें सम गिवन है, सम फाइंड करना है 5। तो हमें यस और नो बताना है, यस और नो बताना है क्या इससे 5 निकल सकता है किसी सबसेट से। तो हम देख के बता देंगे हाँ निकल सकता है 2 और 3 से, बट ऐसे कंप्यूटर काम नहीं करता ना देख के। अब उसके लिए हम क्या लाइक वो करेंगे, सेम पुरानी वाली बैक ट्रैकिंग है। सिंपल सी हम एक ट्री बनाएंगे, हमारे पास 1 है, दोबारा से हमारे पास ऑप्शन है 1 को इंक्लूड करें एक्सक्लूड करें, तो हम पॉजिटिव रहेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली। 1 को इंक्लूड कर लिया, सम हमारा 5 है, 1 को इंक्लूड करने के बाद सम हो गया हमारा 4, क्योंकि पहले सम 5 था, 1 इंक्लूड हो गया तो 4। हम पहले 0 पे थे, हमें 5 पे जाना था, हमने एक स्टेप ले लिया, तो अब हमारे पास बचे 4। ऐसे समझ सकते हैं ना, उसको इरेज करते हैं। अब हमने 4 ले लिया, हमारे पास नेक्स्ट डिजिट जो है वो 2 है। तो ऑब्वियसली विल स्टे पॉजिटिव। 2 क्यों है, क्योंकि हमारी ये डिजिट हमने ले लिया है। अब इस डिजिट की बारी, स्टे पॉजिटिव इंक्लूड करेंगे एक्सक्लूड करेंगे, ऑब्वियसली इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के बाद सम कितना आता है, सम बचता है 2, क्योंकि 4 था, 4 माइनस 2 हमने। अब हमारे पास दो डिजिट, मतलब एक ऐसे डिजिट फाइंड कर लो, जैसे कॉम्बिनेशन फाइंड करना है जिसका सम 2 हो। ऑलरेडी हम ये कॉम्बिनेशन फाइंड कर चुके हैं 1 और 2 का। अब हमें बस एक कॉम्बिनेशन फाइंड करना है जिसका सम 2 और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 3। अच्छा, 3 को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, पॉजिटिव रहेंगे इंक्लूड करेंगे। बट इंक्लूड करने के बाद प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो हमारा सम बनेगा वो एक्सक्लूड कर जाता है जो हमारे रिक्वायर्ड सम है। लाइक अगर हमने 3 इंक्लूड कर लिया, सम कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1, दिस विल बी 6। बट हमें रिक्वायर्ड कितना, हमें चाहिए 5।
तो हमारा जो सम हम बना रहे हैं वो रिक्वायर्ड सम से बड़ा हो जाएगा, विच मीन्स ये तो कंडीशन फेल हो गई, बेस कैसे हिट कर गया, ये तो नहीं चाहिए हमें, ऑब्वियसली हमें 5 चाहिए। तो अगर हम इस बैक लाइक इसको ट्रेस करेंगे 1 2 एंड सॉरी 3 2 एंड 1 को, 3 2 एंड 1 को, तो दिस शोज दैट हमें 5 तो मिलने नहीं वाला, 5 तो नहीं मिलने वाला, सो ये अप्रोच तो नहीं हो सकती। अच्छा 3 नहीं मिलेगा, तो 3 से बैक ट्रैक करते हुए 2 पे गए, हमने 2 को इंक्लूड करा था, तो हमें ये पता चल गया कि भाई 2 को इंक्लूड करने के बाद आगे तो, एक सेकेंड, हाँ हमें ये पता चल गया कि 2 को इंक्लूड करने के बाद आगे जाके तो हमें कहीं आंसर मिल नहीं रहा। एक सेकेंड, ये और कर सकते हैं, 3 को यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, सॉरी मैं डायरेक्ट स्किप कर दिया। 3 को अब हम वापस जाएंगे, यहाँ से हम 3 को एक्सक्लूड करेंगे कि भाई 3 को कर दो एक्सक्लूड, 3 को एक्सक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं, 3 को एक्सक्लूड, ये दो ही तो ऑप्शन होते हैं, इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो, 3 को एक्सक्लूड, अच्छा नेक्स्ट डिजिट पे चले, नेक्स्ट डिजिट है ही नहीं, तो ये हो गया आउट ऑफ बाउंड, अब डिजिट है ही नहीं। दो ही ऑप्शन थे, हमें दोनों चेक करने थे ना, कि इंक्लूड करके देखा तो इंक्लूड करके सम ज़्यादा जा रहा है, एक्सक्लूड करके देखा तो देखा कि अब तो डिजिट खत्म हो गई। तो इसका मतलब अगर इस पाथ को फॉलो करके आएंगे 1 2 3 इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, तो दोनों में ही हमें आंसर तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसमें हो चुका है ये आउट ऑफ बाउंड, उसमें हो चुका था सम एक्सक्लूड, तो दोनों में आंसर नहीं मिलेगा। ये अप्रोच गलत, वापस चलते हैं अब यहाँ से अब वापस चलते हैं 3 से 2 पे, क्योंकि 2 को इंक्लूड करा तो ये देखा कि 2 को इंक्लूड करने के बाद दोनों ही वे में, क्योंकि 2 को इंक्लूड करने के बाद था हमारे पास 3, तो 3 दोनों ही वे में आंसर नहीं दे पा रहा, इंक्लूड होके भी और एक्सक्लूड होके भी, तो इसका मतलब 2 को भी इंक्लूड करने का फायदा नहीं, 2 को एक्सक्लूड करो। 2 को एक्सक्लूड करके हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3। 2 को एक्सक्लूड करने के बाद इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, 2 को एक्सक्लूड करने के बाद आएगा हमारे पास 3, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे जाएंगे, 2 को हटा दिया तो फर्स्ट को ले लिया, 2 को नहीं लिया, अब नेक्स्ट डिजिट को लेंगे जो 3 है। अब फिर से 3 को इंक्लूड या एक्सक्लूड, वही ट्री बनेगा, इंक्लूड या एक्सक्लूड। तो अभी हम कैसे आए, अभी हम आए, हमने 1 लिया अपने उसमें, मतलब हमें फाइंड करना था सम इक्वल्स टू 5, हमने अपना कोई बकेट कह लो उसमें 1 डाला, तो अब हमें फाइंड करना है सम इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे सम इक्वल्स टू हो गया 4, क्योंकि हमने 2 नहीं डाला है उसके बाद, अब हमने डाला है 3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3। तो अब सम बचा हमारे पास 1, अब हमें 1 फाइंड करना। 3 को इंक्लूड करने के बाद है ये चीज़, यहाँ पे आके 1 से आए, 2 को नहीं लिया, 1 को लिखा, 2 को नहीं लिखा, पहले लिखा था 2 को, 2 के आगे जाके देख लिया था कुछ नहीं मिलने वाला, तो 1 पे आए, 2 को एक्सक्लूड करा, ये एक्सक्लूड वाली थी, 2 को एक्सक्लूड करा, 3 पे आए, 3 को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि यही तो देखा है ना इंक्लूड करके, यहाँ तो नहीं देखा कि क्या होगा क्या नहीं, क्या पता 1 और 3 के कॉम्बो से हमें सम मिल जाए, हमें क्या पता। तो 3 को इंक्लूड करा, 3 को इंक्लूड करने के बाद सम जो है हमारा, सम कितना हो गया, अब सम रह गया हमारा 1। क्यों, क्योंकि 1 को इंक्लूड कर लिया था तो सम रह गया था 4, 1 को इंक्लूड कर लिया था, सम रह गया था 4, 3 को इंक्लूड कर लिया, सम रह गया 1। बस अब हमें एक डिजिट और ऐसी चाहिए जो हमारे सम को ज़ीरो कर दे। अब 3 पे पहुंचे, 3 के बाद क्या डिजिट है, अब ये हो गया आउट ऑफ बाउंड, 3 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, ये फिर से आउट ऑफ बाउंड हिट कर गया, अब फिर हमारा सम 1 पे रह गया। इसका मतलब हम ये वाला जो कॉम्बिनेशन है हमारा, पहले हमारा कॉम्बिनेशन था 1 2 3, इससे हमें आंसर नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 1 और 3, अब इससे भी आंसर नहीं मिल रहा, क्योंकि 3 के बाद आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है, अगर 1 3 1 होता तो हमारा काम हो जाता, क्योंकि हमें एक और डिजिट चाहिए थी, बस सिंगल डिजिट चाहिए थी, हमारा सम 5 हो जाता, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है, अब 3 को भी एक्सक्लूड करते हैं, क्या पता ये वाली डिजिट सिंगल हमारा आंसर दे दे, लाइक हमें देख के पता चल रहा है, मशीन को नहीं पता ना। सो 3 को एक्सक्लूड करते हैं, 3 को आए यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, नेक्स्ट डिजिट पे चलते हैं, क्या पता 3 के बाद कोई नेक्स्ट डिजिट, ओ ये तो फिर से आउट ऑफ बाउंड हिट कर गया, तो फिर से आउट ऑफ बाउंड हिट कर गया, क्योंकि 3 को एक्सक्लूड करने के बाद भी कुछ नहीं है, 3 को यहाँ से एक्सक्लूड कर दोगे तो भी कुछ नहीं है, आउट ऑफ बाउंड सम अभी भी हमारा 1 पे लटका रह गया। अच्छा बैक ट्रैक करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं, 3 को इंक्लूड करके कोई फ़ायदा नहीं है, 3 को एक्सक्लूड करके कोई फ़ायदा नहीं है, 2 को इंक्लूड करके फ़ायदा ही नहीं है, ये चीज़ हमने देख ली कि 2 को इंक्लूड करके फ़ायदा ही नहीं है, 2 को एक्सक्लूड करके फ़ायदा नहीं है, विच मीन्स हमारा ये जो लेफ़्ट वाली साइड है, ये जो लेफ़्ट वाली साइड है हमारी, इस साइड को इंक्लूड करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, विच मीन 1 को इंक्लूड करके हमें आंसर नहीं मिल रहा। फिर से बताता हूँ, हमने ऐसे 1 2 और 3 लिया ना,
तो 1 को इंक्लूड करके हमने 2 के सारे ऑप्शन देखे और 3 के सारे ऑप्शन देखे, फिर 2 को एक्सक्लूड करके देखे, 3 को एक्सक्लूड करके, मतलब हमने सारे कॉम्बिनेशन टेस्ट कर लिए हैं यहाँ पे इस जगह पे। 3 इंक्लूड एक्सक्लूड, सम ज़्यादा हो रहा है, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, ओके। 2 इंक्लूड एक्सक्लूड, 2 यहाँ पे इंक्लूड करा था, अब 2 को एक्सक्लूड करके सीधा 3 पे आए, 3 आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड, सम अभी भी 1 है, सम यहाँ पे भी, सम यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे तीनों में आउट ऑफ बाउंड जा रहा था, विच मीन्स हम 1 को इंक्लूड करके तो सोल्यूशन ला ही नहीं सकते। सोल्यूशन हमारा 5 है और जो हमारी गिवन डिजिट है वो 1 को इंक्लूड, ये लेफ्ट वाला पाथ पूरा इंक्लूड का था ना, ये वाला इंक्लूड करके तो नहीं आने वाला, हमें एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा। अब चलते हैं एक्सक्लूड की तरफ। अब करेंगे इसको एक्सक्लूड। 1 इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड करके देख लिया भाई, 2 3 4 सब करके, 2 3 सब करके देख लिया, कुछ नहीं मिल रहा, एक्सक्लूड करते। 1 को मत लो, अगर 1 से आंसर नहीं आ पा रहा, एक्सक्लूड करेंगे तो क्या ऑप्शन है, सम हमारा 5 ही रहेगा, ये खाली पड़ी हुई है जब हमने इसमें कुछ लिया ही नहीं, सम 5 रहेगा अभी। अच्छा अब 1 को यहाँ पे लिख लूँ, 1 2 3, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 को इंक्लूड नहीं करा कि भाई आगे चलो, 2 पे आए, अब फिर से पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा नहीं है ना 2 को यहाँ से एक्सक्लूड कर दें, लाइक हमने 1 को हटाया, अब नई कॉम्बिनेशन बनेगी, 2 को इंक्लूड करेंगे, 2 को एक्सक्लूड, तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव रहते हैं, 2 को इंक्लूड करते हैं। अच्छा 2 को इंक्लूड कर लिया, तो सम क्या रह गया, सम रह गया 3, 3 रह गया। ये ऐसे डेप्थ लेवल मान सकते हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यही वाला डेप्थ लेवल है, ये वाला डिजिट्स का, तो यहाँ पे 3 है। अच्छा नेक्स्ट पे क्या आएंगे, नेक्स्ट पे आएंगे 3 पे। अब फिर से दो ऑप्शन है कि 3 को इंक्लूड करें, एक्सक्लूड कर दें, 3 को पॉजिटिव रहते हैं, 3 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड करा तो सम इक्वल्स टू 3 चाहिए था, 3 को इंक्लूड करके सम इक्वल्स टू हो गया 0, ओ गॉड, ये तो चाहिए था, यही चाहिए था। 3 को इंक्लूड करके कोई आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, सारी चीज़ ठीक हो गई। यहाँ पे इंक्लूड करके 3 को 2 के साथ, बट 1 को एक्सक्लूड करके हमें हमारा आंसर मिल गया। ये लाइक आई नो, ये देख के पता चल रहा था कि 2 + 3 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, बट फॉर कंप्यूटर इट्स नॉट लाइक दैट कि वो देख के ऐसे वो करे। सो वो 1 को एक्सक्लूड करके आया, 2 पे आया, 2 से वो 3 पे गया, 3 को भी इंक्लूड करा और उसको जो उसकी कंडीशन चाहिए थी वो हिट कर गए, विच मीन्स जो उसके लिए ऑप्टिमल, लाइक ऑप्टिमल जो आंसर है वो है 3 और 2 दोनों इंक्लूडेड, विच मीन्स आवर आंसर इज 2, 3 विच इज 5। सो ऐसे इसने फाइंड किया। अब यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा, इसके नीचे जाके जैसी कंडीशन फाइंड हुई यहाँ पे जाके ब्रेक कर जाएगा। अब इसके आगे जाने की नीड ही नहीं है, इसके आगे हो सकता है 10 कॉम्बिनेशन और हो, बट हमें सिंगल एक कॉम्बिनेशन चाहिए था कि पॉसिबल है इसमें से ये सम निकालना। लाइक हमें दे रखा था 1 2 3 4 एग्जाम्पल, तो इसमें से पूछ रहा था कि कोई सम दे देगा हमें, क्या पॉसिबल है इसमें से 5 निकालना, क्या पॉसिबल है इसमें से 7 निकालना, बस। जिस क्वेश्चन में पूछे कि काउंट द नंबर ऑफ वेज 5 और 7, लाइक कोई भी सम दे दे, फॉर एग्जांपल 5 ही दे दिया कि काउंट द नंबर ऑफ वेज 5 कैन बी फॉर्म फ्रॉम दी सबसेट, इस पूरे एरे में से कितने सबसेट तुम ऐसे निकाल सकते हो तो 5 बनाएंगे। सो इसमें देख के लग रहा है पता कि 1, 4 एक बनाएगा और एक 2, 3 बनाएगा, इसके अलावा तो आई डोंट थिंक और कोई बनाएंगे, तो ये दो 5 बनाएंगे। बट हमें जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंपल था कि एक एरे गिवन है, क्या इसमें से सम 5 निकल सकता है, बात खत्म, हमने ढूंढ के बता दिया, हाँ बैक ट्रैकिंग यूज़ करके कि हाँ इसमें से सम 5 निकल सकता है 2, 3 को यूज़ करके। हाँ, मतलब मेन वो हमारा ये था 1 2 3, 2, 3 को यूज़ करके। अच्छा तो हमने जो बिल्कुल स्मॉलर चंक ऑफ प्रॉब्लम थी, ये सबसे छोटी चंक ऑफ प्रॉब्लम थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी हमने क्या क्या सॉल्व किया मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, ईजी रहेगा। फर्स्ट सबसे पहले जो सबसे मिनिमम प्रॉब्लम है वो है सम फ्रॉम अ एरे और सबसेट, ठीक है। इसको यहाँ पे साइड में एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 सम गिवन है 5 वाई और एन, यस और नो में, विच मीन बुलियन में आंसर देना कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, बस दैट्स इट। सबसे स्मॉलर चंक ऑफ प्रॉब्लम। अब इसी प्रॉब्लम को एम्पलीफाई करते हैं, इसी प्रॉब्लम को एम्पलीफाई करते हैं, बड़ी एरे हैं 1 5 11 और 5 की। अब इसको दो पोर्शन में स्प्लिट करो, दो पोर्शन में इसको स्प्लिट करो और बताओ कि क्या दो इसमें से ऐसे पोर्शन निकल सकते हैं जिनका सम सेम हो, जिनका सम सेम हो। तो अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन वही है कि इसमें से
11 निकालो। मतलब वो ऑब्वियसली बोल नहीं रहा है ये उसमें से 11 निकालो, बट अगर लॉजिकली सोचें, ये 22 है, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो। अरे एक बड़ी चीज़ को 14 को वो कह रहा है 2 हिस्सों में डिवाइड करो सेम हो, तो दो तो हिस्से सेम ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और दो ही हिस्से हो पाएंगे अगर हाफ में डिवाइड करना है तो सेम में। तो 11 11, तो दोनों का सम 11 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये अगर इस हाफ प्रॉब्लम को देखो तो ये क्या प्रॉब्लम बन गई, ये वही प्रॉब्लम बन गई ना कि एक एरे गिवन है और उसमें से 11 सम निकाल के बताना है कि निकल पाएगा या नहीं। अगर आधा 11 हुआ तो रिमेनिंग हाफ तो 11 ही होगा ना। इसमें देख लो, इसमें 5 निकालना है, इसमें से 5 निकालना है सम, कि ये सम 5 निकालना है, और उसमें से बताना है कि 5 निकल सकता है नहीं निकल सकता। अगर 5 निकल गया, अगर इसमें से 11 निकल गया, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग हाफ तो 11 ही बचेगा ना। लॉजिकल, ध्यान से एक बार कुछ सोच के देखो। कोई और एग्जांपल है ऐसे, इसमें से कह रहा है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। मान लो 50 है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, 25 25। तो अगर तुम्हें एक हिस्सा मिल गया कि हाँ ये 25 में डिवाइड हो रहा है, तो बचा हुआ कहाँ जाएगा, 25 ही होगा वो भी। और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि सम ढूंढना है तुम्हें एक एरे में से, बड़ी एरे दे रखी है उसमें से सम ढूंढना है, यस और नो, यस और नो ढूंढनी है। तो बिग चंक ऑफ प्रॉब्लम यही थी कि सम निकालना है एरे में से स्मॉलर। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो हमने इस फर्स्ट वाली प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए करी, वो थी सबसेट फ्रॉम अ गिवन एरे टू इक्वल सबसेट। ये ज़्यादा अच्छा, दो इक्वल सबसेट निकालने थे एक बड़े एरे में से, निकाल दिए। इसमें फर्स्ट वाली प्रॉब्लम लगा दी कि 25 फाइंड कर दिया 50 में से, मतलब बड़ी एरे में से कि हाँ भाई इसमें 25। जस्ट अ सेकेंड, अब ये वाला भी हो गया। हमने हाफ चंक भी फाइंड कर लिया कि हाँ हमारे पास एक ऐसा एरे है जो 25 बनाता है, तो जो रिमेनिंग है वो अपने आप ही 25 बना रहा होगा। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट एक ही था सिंपल। अब थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉब्लम ये होगी कि एक एरे गिवन है, अब उसको के पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इक्वल साइज के। ये है जो हार्ड में दे रखी थी, इसको मैं दिखाता हूँ, ये वाली। अभी हमने ये वाली क्वेश्चन करा कि टू सबसेट में डिवाइड करना था सच दैट सम ऑफ एलिमेंट बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये मीडियम था लीड कोड पे, लीड कोड पे ये वाला भी मीडियम ही है, बट इसमें ये हार्ड दे रखा है पार्टीशन ऑफ के सबसेट। अब के वाला देखते हैं, के वाला क्या कहता है, वही कि एक एरे गिवन है और एक इंटीजर के गिवन है, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। बुलियन दे दिया यहाँ पे, आपको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है कि क्या उसको के नॉन एम्प्टी सेट्स में डिवाइड कर सकते हो जिनका सम इक्वल हो। जैसे कि ये दे रखा है यहाँ पे के, मतलब ये यहाँ पे नंग एरे दे रखी है। अभी हमसे पूछ रहा है के इक्वल्स टू 4 कि क्या आप इसको चार पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हो कि इनका इक्वल सम आ जाए, और कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि नंबर इतने ही होने चाहिए, बस एक बाउंडेशन है रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हाँ कर सकते हैं। 5 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 5। अभी देख लो नंबर रिपीट नहीं हो रहे, इसमें भी जो 2 है वो दो बार है, ये रहा 2 2, इसमें भी 3 दो बार है यहाँ पे। तो ये पूरी प्रॉब्लम जो है ये इस वाली प्रॉब्लम का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, और ये जो प्रॉब्लम है ये एक सबसेट का सम फाइंड करना है, बस उसकी एक्सटेंडेड वर्जन है। ये उसका डबल हो रहा है, और इसमें यहाँ पे जो टू दे रखा था ये कि टू सबसेट है, अब उस टू सबसेट की जगह के दे दिया है। तो अगर ये वाली क्वेश्चन कर लिया तो इस के में अगर टू डालोगे कि एक पूरा बड़ा हमें एरे दे रखा है और उसको के इक्वल्स टू टू कर दोगे यहाँ पे कि उसको हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो सेम यही वाली प्रॉब्लम बन जाएगी। जो इसका सॉल्यूशन है बुलियन यस और नो आता है इसमें, और इसमें भी हमने बुलियन यूज़ किया, इसमें भी रिटर्न यस और नो ही कर रहे हैं। अच्छा, दोनों प्रॉब्लम डीपी से होंगी, लाइक बेस्ट तरीका इनका डीपी का है, बट रिकर्जन से भी होती है ये। ऑप्टिमल भी ऑब्वियसली डीपी होता है, बट रिकर्जन से भी सॉल्व होती है। ये वाली मैंने सॉल्व भी करी है एंड ये एक्सेप्ट हो गई थी 32। इसका कुछ ये डिटेल्स अभी आ जाएंगे आई गेस। अरे दोबारा सबमिट कर देते हैं, इतना क्या लोड है। हाँ, तो ये फास्टर भी थी एंड उसने स्पेस थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लिया क्योंकि उसका ट्री बहुत लंबा बनता है, लाइक वो चलता चला जाता है। एंड ये फिर सजेस्ट भी करता है कि अगर आपने सिंपल कर लिया आप इसकी थोड़ी सी एडवांस चेक कीजिए। सो ये आई गेस बेस्ट कॉन्सेप्ट है, एंड इसका कोड तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू हो ही जाएगा इसका एंड इसका साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।